nice. And how many of you have already thought कि यार कभी ना कभी कुछ तो करेंगे? Oh my God, that's massive. And how many of you have already started working on some kind of idea and looking to do something great there? આમાં ઓછા છીએ. Aspirations વધારે છે. Oh, nice. So, by the way, I'm Himani Kankaria. I'm not the founder of Kankaria League. Okay. So usually, we are like this, right? We always have ideas, right? आज कुछ तूफानी करते हैं. So technically, whenever we see a startup owner, or as we consider as ourselves as startup owner, so I guess મારો અવાજ આવે છે, right? Oh, thank you. That's હા એ વાત તો સાચી છે. ચા મિસ કરે છે. Okay, so every startup owner has this thing that, we always are flooded with the ideas. But we think that actually we have a lot of things going on. Idea validate कैसे कराएंगे, MVP बनाना है, यार इन्वेस्टर से मीटिंग करना है, सेल्स बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट नहीं आएगा तो क्या होगा. We feel like that, right? That हमारे दिमाग में ये चल रहा होगा या स्टार्टअप फाउंडर्स के दिमाग में ये चल रहा होगा. टेक्निकली हम गुजरात में हैं, हम सिर्फ नंबर समझते हैं, राइट? तेल पीवा गયું યાર, MVP જે બનશે 400 કરોડે એક્ઝિટ, $1 billion યુનિકોર્ન. ઓ માય ગોડ, આપણા સપના જરા મોટા છે, રાઈટ? એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ રીઝન વી આર લાઈક અલી. હજી તો સ્ટાર્ટઅપ આઈડિયા આવ્યો નથી એન્ડ વી આર લાઈક બોસ 400 કરોડે એક્ઝિટ કરીશું, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ હાઉ વી આર ઓલવેઝ. So, to be very honest, it's like startup is technically nothing without its execution. How many of you believe this? Say yes, no, maybe? Oh, wow. So, we have ideas. We have a lot of ideas. We have marketing ideas as well. कोई आके हमसे पूछेगा ना, बॉस मेरे बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, हमारे पास 10 आंसर होंगे. बेटा तू ये मत कर, ये कर, वो कर, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू कि जब हमारी बारी आती है ना, वी ऑलवेज फील लाइक ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, सब कर लेंगे. बट इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, राइट? सो द वे स्टार्टअप इज नथिंग विदाउट इट्स एग्जीक्यूशन, स्टार्टअप इज ऑल्सो नथिंग विदाउट द राइट मार्केटिंग अप्रोच. सो टेक्निकली हमारे लिए ऐसा होता है दैट एनीथिंग दैट वी डू इज राइट, राइट? ऑफ कोर्स, मतलब हम जानते हैं हमारे बिजनेस को, हमसे ज़्यादा कौन जानता है? नोबडी. We know our business, we know our audience, we know our competition, we know our industry, we know everything, right? So that is the reason that we feel that our marketing approach is right. And to be very honest, it is not wrong, because it is our business. We know better than anybody else, right? And specifically when it comes to marketing, it can be right or it can be double right. There is nothing such thing which is wrong. Why? Because marketing is completely different. And that is the reason why startup owners always know, मतलब हम लोगों को पता है प्रोडक्ट क्या बिल्ड करना है, yes. उसको कैसे लोगों को पहुंचाएंगे ये भी पता है, राइट? वी नो किस मोमेंट पे कन्वर्जन आएगा, कौन सा यूएसपी पिच करेंगे, वैल्यू प्रोपोजिशन पिच करेंगे, तब जाके कन्वर्जन आएगा, पता है हमें ये, राइट? बट we only struggle where we see that how are we going to position our product in the market and make sure that we market it right. This is the only challenge that we see. And उसका reason भी है, because हम लोग ये समझ के बैठे हैं marketing is all about bringing sales. डे वन से कंसेप्ट ही यही होता है. और हम लोग गुजरात में रहते हैं, हम गुजराती भी आधे हम लोग गुजराती भी होंगे, एंड वी माइट बी ऑल्सो थिंकिंग ऑफ कि गुजराती के साथ रह रह के धंधा करना आ ही जाता है, राइट? तो उस केस में वी ओनली थिंक ऑफ बिजनेस. बट मार्केटिंग इज अबाउट क्रिएटिविटी. वाई क्रिएटिविटी? ये ऐड किसको याद है? ये जितनी बार आता है ना, उतनी बार मेरे को होता है क्या है यार,
Literally. But they are playing with your mindset. याद रह जाता है ना, राइट? स्टिंग का एड याद है, वो बहन जी के बाल ऐसे हो जाते हैं, राइट? दैट्स ब्रांड रिकॉल. स्टिंग पीता कोई नहीं है, बट दे आर प्लेइंग विथ योर माइंडसेट. ब्रांड रिकॉल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट इज वॉट वी कॉल इट क्रिएटिविटी. Then marketing is all about funds. ગુજરાતીમાં કહેવત છે, જેટલું ગોળ નાખો એટલું ગળ્યું બને. And marketing is like that. The more you invest, the better you get. Right? And that is the reason we are in the game. We are running behind investors. यार पैसे चाहिए. Bootstrap करेंगे तो we'll be very, very careful. Funding आएगा तो full all in जाएंगे. Right? And marketing is also about experiments. जो चीज़ इनके लिए चली वो इनके लिए नहीं चलेगी. Right? The strategy that worked for me might not work for the same kind of industry, the same kind of agency. And that is all it is. And that is the reason why we say marketing is never right or wrong. It is right or double right. अगर slow growth आ रहा है marketing से, which means कि हाँ थोड़ा चल रहा है, शायद direction थोड़ा pace पकड़ने में time लगेगा. गियर में आ जाएगी, 5th गियर में तो चल पड़ेगी, right? And that is the reason जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उसको टाइम भी लगता है, राइट? एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, 2 हफ्ते चलाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वी विल डू ऑल्सो रन कैंपेन्स फॉर 2 months 3 months एंड वी विल वेट फॉर द रिजल्ट्स. बट व्हेन वी बिकम स्टार्टअप ओनर्स वी फेल टू अंडरस्टैंड दिस कि टाइम लगेगा. वी वॉन्ट इंस्टेंट रिजल्ट्स, राइट? फटाफट लॉन्च करो कैंपेन्स, get the leads coming in, conversions happening, revenue picking in, right? We want that, and nothing wrong in that. But हमारी सुई एक ही जगह अटक जाती है. The funds, right? Funds, whether it is bootstrapped or we get funding, the only challenge that we face is most of the investment goes into product development. Right or wrong? Developers, designers, market research करना पड़ता है. A lot of things that we have to do. And that is the reason most of our funds go into development side. And जब marketing की बात आती है, they feel like we don't have budget. तो क्या उसको ignore कर देने का? अगर present नहीं करेंगे market में तो क्या करेंगे फिर? Right? That's where we have to work upon entering the market without extensive marketing budget और marketing infrastructure. यानी बड़ा टीम नहीं चाहिए, बड़ा फंड भी नहीं चाहिए, right? फिर भी marketing तो करना है, right? If we want to do that, then there has to be 4 things that needs to be taken care of. We call it prerequisites, by the way. अगर ये 4 चीज़ नहीं हुई तो चाहे जितना भी गुड़ डाल दो, sweet नहीं लगेगा. You need those 4 things to be sorted for you. Number 1. niche down even before you start. अच्छा, सारे लोग आईटी कंपनी में काम कर चुके हैं कभी या कर रहे हैं? व्हाट इज द सीन? कर रहे हैं, कर भी चुके हैं. नाइस. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन कि आईटी कंपनीज में सारी टेक्नोलॉजीज ऑफर होती है, सब इंडस्ट्रीज को टारगेट किया जाता है, एंड मोबाइल भी कर रहे हैं, वेब भी कर रहे हैं, हर टेक्नोलॉजी, हर क्रॉस प्लेटफॉर्म, सब कुछ कर रहे हैं, राइट? यस. पर दे आर डूइंग दिस फॉर ईयर्स नाउ. दैट इज द रीजन वाई दे आर एबल टू डू इट. बट अगर आपने रिसेंटली चेक किया हो तो वो सारी आईटी कंपनीज ने भी स्टार्ट कर दिया है ऑफ डिस्कसिंग एंड प्लेइंग ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ्स. अगर फिनटेक पे स्ट्रॉन्ग हैंड है तो फिनटेक पे ज़्यादा एक्सीलेटर दबाएंगे, अगर हेल्थटेक में है तो हेल्थटेक में जाएंगे, राइट? दैट इज द रीजन, क्योंकि नीश प्ले करना इज ईजी टू गेट इन टू द मार्केट, टू मार्केट इट वेल with cost efficiency and even to generate leads out of it. So I will give you my example. When I started Missive is my agency name, and Missive में ऐसा था कि when we started we were only organic marketing agency. We were not doing performance marketing, paid ads, कुछ भी नहीं. To be very honest, we are still the same after 4.5 years. So we have not changed anything. We are still playing on our strengths. B2B SaaS tech was the target, and we are still doing that, right? And that is the reason why people are able to recall Missive for just organic marketing.
They will never come and tell us or fill the form that we have a requirement of paid advertising, because the messaging is very clear, we do organic marketing, right? And when you play on your strengths, lead generation and conversion becomes faster. So how many times have we seen कि जब हम जाते हैं एजेंसी हायर करने जाते हैं, when we talk to vendors, different vendors, right, design developers or IT or marketing or anything, we always see that, you know, we discuss the requirements and then they say that यार बजट क्या है, तो we say अभी तक तो कुछ बजट है नहीं, but then we will think of कि आप बताइए कुछ, देखते हैं, right? This is what the conversation happens. This even happens to us as well. तो कोई नई बात नहीं है. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? जब पूरा प्लान प्रपोजल बन के जब प्रेजेंट किया जाता है, कमर्शियल्स आते हैं, ओह इतना तो हमारा बजट नहीं है, तो इसीलिए तो पूछा था ना कि बजट क्या है. So technically, you guys or us as startup owners, we need to sit together with our growth consultant and ask them कि बजट क्या रही है. अगर बजट का ही इश्यू रहेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितना हमारे पास बच रहा है और कितना मार्केटिंग में डाल सकते हैं, then you will always struggle, always, क्योंकि पता ही नहीं है. और जब बजट हाथ में बचेगा ही नहीं, we will just keep on building our product side, nothing else. एंड फिर पता चलेगा 2 साल 2.5 साल निकल गए और अब पता लग रहा है कि डिमांड जनरेट ही नहीं कर पाए हम लोग. एंड दैट विल बी रिस्की. फिर इन्वेस्टर्स भी हाथ नहीं डालेगा प्रोडक्ट में. डिफाइन योर ऑडियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कितने लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज कर रहे हैं? ओके, तो उसमें देयर माइट बी अ केस वेयर यू माइट हैव हर्ड अबाउट आसाना, यू माइट हैव हर्ड अबाउट जीरा, राइट? So in that case, who pays the bill to Jira company? Atlassian को कौन पे करता है हमारी कंपनी में? Are we paying it as team members or the employers? Right? CTO जो होंगे वो पे करेंगे, right? So they become the decision makers because they are going to pay. And we have to decide whether we want to target those decision makers who are going to pay for us, और we have to also educate the team members who will influence. मार्केट में नया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल आया है, कौन बताएगा? हम बताएंगे, राइट? सीटीओ को थोड़ी मालूम होगा, सीटीओ मस्ट बी बिजी, राइट? तो वो काम हमारा है, ये है अफोर्डेबल वाला प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, वी मस्ट ट्राई दिस. सो इन्फ्लुएंस हम करते हैं उनके डिसीजन को, फाइनल डिसीजन ऑलवेज कोई और लेता है. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई सच लेयर्स कि फॉर आवर प्रोडक्ट who will be the decision makers, who will be the people who influence those decision makers, and who are all people who will work as sales advocates for us. बाहर जाके 10 लोगों को बोलना चाहिए, भाई ये बंदा बहुत जोरदार प्रोडक्ट बना रहा है, इसका एक डेमो लेना चाहिए. For that also there is a separate section of audiences, right? And to do that, you have to make a list of first 100 customers. कितने लोगों को अदानी, रिलायंस ऐसे सब चाहिए कि एज अ कस्टमर कभी हमारे बने? नो एस्पिरेशन? वाह, ये भी अच्छी बात है. अच्छा हाँ, वो बात तो सही है, छोड़ो हटाओ. तो एग्जैक्टली, सो बट देन वी ऑलवेज हैव, जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हमारे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, बॉस इसको बेच के आएंगे हम, राइट? फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही हम लोग खोल रहे हैं, D2C ब्रांड खोल रहे हैं, ई-कॉमर्स खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट वी विल ऑलवेज हैव एस्पिरेशन, यार ये मेरा प्रोडक्ट लेना चाहिए, राइट? उस एस्पिरेशन वाले की लिस्ट बनाओ पहले तो, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन वी हैव टू आइडेंटिफाई वो कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है. डेट पे जाओगे डायरेक्ट रोज दोगे, वो तो कॉमन है, वो तो भूल भी जाएगी नेक्स्ट टाइम. नया क्या करोगे? चॉकलेट भी भूल जाएगी. यू हैव टू क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन, एंड फॉर दैट यू नीड टू नो कि वो कहाँ, लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव है, रेडिट पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्रैवल फ्रीक है, क्या है. We need to be knowing this. And then, of course, personalities and finding out their why. हमको तो पता है हम product क्यों बना रहे, right? We know why are we building a product? To solve a problem, right? And which problem, that also we know. But we don't know वो लोग buy क्यों करेंगे. Why they would be interested in our product. Because today there are a lot of products already out there in the market. कुछ नया कर रहे हैं तो उसमें भी नया दिखाना पड़ेगा, पर वो नया भी ट्राई क्यों करेंगे. सो वी नीड टू ऑल्सो बी नोइंग देयर वाई, कि वो हमारा प्रोडक्ट क्यों यूज़ करेंगे. एंड यू हैव टू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स डॉक्यूमेंटेड. उसका रीज़न मैं बताऊंगी आगे.
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बेसिक स्टेप में ये फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू सेट द प्रायोरिटी. अगर आप B2B में है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि B2B में कितने चैनल्स है दैट कैन ब्रिंग अस ऑडियंस, राइट? If it is D2C, then also we have to identify which all platforms where we can target. Because हमारे पास फंड नहीं है इतना ज़्यादा, so we have to play careful because budget friendly marketing strategy की बात कर रहे हैं, तो we cannot go all in, right? So 4 things clear? Awesome. Now we go to the most important part, which is strategy. So building thought leadership on LinkedIn. कितने लोग LinkedIn पे एक्टिव है? बढ़िया है, पोस्ट डाल देना और मेरे को टैग कर देना. तो the point is, why LinkedIn? And what exactly does thought leadership mean? जो हम सालों से काम करते आ रहे हैं, that is thought leadership. If we are doing one technology and we are just master of it, that is called thought leadership. अगर हमसे अच्छा कोड कोई नहीं लिख सकता है, then that is also a thought leadership. हमसे ज़्यादा फिनटेक इंडस्ट्री को कोई नहीं जानता है, that is also a thought leadership. So you need to understand your own thought leadership कि हम किस में लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं. हम हमारी नॉलेज शेयर करके शायद किसी को कंट्रीब्यूट करने में हेल्प कर सकते हैं, ग्रो कर सकता है कोई हमारे साथ. दैट इज वेयर द LinkedIn plays a very huge role, because today as well, for most of the companies and the products, lead generation happens on LinkedIn. How many of you know the D2C brand called Zook? It's a bag, मतलब females को तो पता होगा. Yeah. Oh nice. I'm happy. गिफ्ट किया था क्या? हाँ, nice. So exactly. तो Zook ब्रांड के co-founder को आप जानते हो? ब्राउजर स्टैक कितने को पता है? It's a cross browser testing tool, right? So ब्राउजर स्टैक का CTO is the co-founder of Zook. So we collaborated together. That's how I know him. And जब उन्होंने अपना D2C brand launch किया, he even announced it on LinkedIn. Why? Because the connections help, right? And that is the reason why we have to make sure that we are also active, super active on LinkedIn. LinkedIn can help in a lot, many ways, apart from jobs, huh? So, वो 100 लोगों की list बनाई हमने, right? We are sorted with the list. That is all documented. We have to search them on LinkedIn. Whereabouts find out करने हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कौन सी conferences में जा रहे हैं. We have to do a complete research. Without research, there is nothing. Then we have to just pick 5 every day. Every day के 5 लोगों को pick up करेंगे and we will just go and interact with them. Like करेंगे उनकी post को, comment करेंगे, then they will start noticing us. सीधा जाके DM मत कर देना LinkedIn post वो connection request भेज के, वरना मेरे जैसा होगा तो block कर देगा. करता है कोई मेरे जैसा? नहीं करता? ठीक है. But yeah, this is important. अगर आपके मतलब it happens, आप अभी किसी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें और तुरंत से एक DM आ जाता है एंड दे आर आउटरीचिंग सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफरिंग टू यू. अभी तो आपने उनके साथ कुछ इंटरेक्शन भी नहीं किया एंड यू आर डूइंग द सेल्स पिच. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट. एंड देन यू हैव टू थिंक ऑफ कि हाँ LinkedIn पे कुछ पोस्ट करेंगे. अभी आया बिगेस्ट चैलेंज, क्या पोस्ट करेंगे? प्रोडक्ट तो बन रहा है, प्रोडक्ट बनानी है. व्हाट आर वी गोइंग टू पोस्ट? आज पोस्ट कर दिया, डे फेस्ट में आए, आज की पोस्टिंग हो गई. 2 महीने के बाद वापस खोलेंगे LinkedIn, क्या लिखेंगे? फिर वापस बंद कर दिया. सो वी हैव गॉट आइडियाज. सो वी हैव क्यूरेटेड 3 months का पूरा पाइपलाइन है. अभी आगे स्लाइड में इट विल बी गूगल डॉक का एक वो शेयर करूँगी मैं. इन दैट केस फॉर एवरी मंथ वी हैव लिस्टेड 5 टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट. इसमें आपको सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, राइट? और ये जो हाईलाइट किया है, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस एंड वी आर गोइंग टू प्लेस इट ऑन AI. AI कितने लोग यूज कर रहे हैं फॉर राइटिंग कॉन्टेंट, ईमेल्स? सच में हाँ, बाय गॉड, आप लोगों के एम्प्लॉयर्स ने डेफिनेटली कभी ना कभी किसी को बताया होगा, आज ये लोग बहुत बढ़िया ईमेल लिखते हैं. इतना सोफिस्टिकेशन बाय गॉड जीवन में कभी नहीं देखा था. सो दैट इज हाउ इट इज. सो ये वाला जो लाइन है, दैट इज द फिलिंग द ब्लैंक वाला टेम्पलेट. ठीक है, वी जस्ट हैव टू फिल द थिंग्स कि व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे.
ठीक है, ये हमेशा बदल सकता है बिकॉज इट्स अ टेम्पलेट. एंड देन वी हैव टू आस्क चैट जीपीटी कि भाई पर्सनलाइज्ड वे में देना है, कॉन्वर्जेशनल टोन में देना है, और प्लीज़ इनफॉर्मल रखना. वो एक्सप्लोर, डिस्कवर, एक्सेप्शनल वैसे टाइप के हमें टर्मिनोलॉजीज नहीं चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉम्प्ट. ठीक है, ये प्रॉम्प्ट किया एंड वी गॉट द रिजल्ट. क्योंकि अचानक से बहुत लंबा लिखेंगे तो पढ़ने वाले को भी हो जाएगा इतना ज्ञानी कब से हो गया ये बंदा. तो वी हैव टू कीप एंड मेंटेन द लेंथ एज वेल, राइट. एंड ये सारा सब कुछ वी हैव एडेड इन दिस गूगल डॉक्यूमेंट. सो अगर इफ यू वांट जस्ट 10 seconds क्विकली scan it. All examples are given. 3 months का पूरा pipeline has almost 15 topics which you can keep on repeating by changing just the words in the filling the blanks. All set? All ready? मतलब मेरा भी खींच रहे हो तो मेरे को बता दो, मैं बाहर आ जाऊं. Awesome. Next is paid ads. Now you must be thinking यार ये तो इफेक्टिव बजट फ्रेंडली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात हुई थी, एड्स कहाँ से आ गया. एड्स तो चाहिए यार, लीड्स नहीं आएगा तो पेट में दुखेगा, रात को नींद नहीं आएगी. सो वी कांट हेल्प इट, वी नीड टू डू पेड एड्स, राइट. सो यस, वी हैव टू कीप अ सेपरेट बजट फॉर दिस. भले ही आप 5,000 रखो, 25,000 रखो, 1 lakh रखो, 5 lakhs रखो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट देन यू नीड टू कीप अ सेपरेट बजट बिकॉज ये एड्स तो रन करना पड़ेगा, नो ऑप्शन. एंड वी ऑल्सो हैव टू डू सेपरेट कैंपेन्स फॉर न्यू ऑडियंसेज एंड रिपीट. बिकॉज एक बार जो बंदा आपका प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट विजिट करके गए हैं, राइट, दे नीड टू बी पिच्ड अनदर लेवल ऑफ मैसेजिंग कि बॉस अब देख लिया है, थोड़ा बाय करने का सोचते हैं, राइट. सो दैट इज देयर. एंड ऑल्सो ट्राई बोथ ग्राफिक एंड वीडियो एड फॉर्मेट्स. आप लोग टेक बंदे हो, यू नो कैसे वीडियो बनाना है, इस पर तो क्या डिस्कस करना. एंड वी हैव टू कीप मॉनिटरिंग द ROI एज वेल. एड स्पेंड पे कितना हम लोग स्पेंड कर रहे हैं एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना पड़ रहा है. बिकॉज हम लोग जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं ना उसके साथ इसको मैच भी करना पड़ेगा, राइट. ग्रेट. नाउ वी आर डन विद द लीड्स. लीड्स तो मिलने लगेगी, पेड कैंपेन्स कर दिया, वी आर डन. नाउ लेवरेज पर्सनल नेटवर्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, आपके ब्रांडिंग करने के लिए हो, जो भी यू टेक, यू नेम एनी रीजन एंड दीज पर्सनल नेटवर्क्स विल हेल्प यू. फैमिली, फ्रेंड्स, एनीथिंग, इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो भी चाहिए, because these are the people will promote your product without any financial interest. So you need to tap this network very powerfully. अब जब तक ऐड चल रही है, नेटवर्क बना रहे, टाइम लगेगा, तो एक और काम करते हैं, कम्युनिटीज़ भी ज्वाइन कर लेते हैं. You guys are already a part of a, many communities. Dayfest is also, one kind of a very, very huge community, Google Developers Group. It's not that and we have been a part of it since so many years. ये नेटवर्क्स हो जाते हैं कि वी हैव टू डू इट अबव एंड बियॉन्ड द ट्रेडिशनल, जो हम लोग फ्रेंड्स, फैमिलीज से जो भी हम नेटवर्क बोल रहे हैं, ये उसके बाहर का नेटवर्क है. एंड हियर, बाय द वे, वी आर नॉट हियर फॉर सेल्स. ये सारे नेटवर्क्स आपको सेल्स में हेल्प नहीं करेगा, लीड जनरेशन में हेल्प नहीं करेंगे. ये आपको हेल्प करेंगे टू लर्न हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, अ सॉलिड बिजनेस, हाउ टू बिल्ड प्रोसेसेस दैट नोबडी एल्स कैन डू इट. That is what these communities are going to help you with. कहाँ जाना है, किसके पास हेल्प मांगना है, कौन से इंक्यूबेशन सेंटर में जाना चाहिए, everything will be guided by these communities, and that's the reason why we need to be a part of this. Not even PNI? Sorry? Not even PNI for sales? No, technically no. So yeah, and then initiate personalized outreach. Please cold outreach mat karo. We already discussed this. People can knock you out of their LinkedIn request and the connection. So please don't do it. Even WhatsApp pe karo, whatever channel that you pick, your top 3 channel that you have selected, please make sure कि जो research हमने किया है, their whereabouts and everything, that has to be covered in your outreach message, whether it is email or anything else. So yeah, I mean, this is something, हाँ, ये भी मैंने ChatGPT से ही लिया है, and this is not at all personalized. So I literally, don't believe in doing that. So that is the reason why we always think of going extreme personalization. मतलब अगर जयदीप बाबा से बात करनी है तो जयदीप बाबा बोलूँगी तभी उनको फील होगा कि हिमानी ने मैसेज किया है. Otherwise it will be all generic, right? And then go out of the box.
to make that first impression. जो मैंने chocolate, you know, rose की बात करी, you have to go think of something else, right? And then do a DM. Awesome. Comes to the SEO part. I know लंबा चलता है, right? But the impact that this can create is आपके customer acquisition cost को बहुत अच्छे से manage कर सकता है. So that is the reason why you have to slowly and gradually start, you know, focusing on SEO as well. But then there's a problem. हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, हम लोग टेक्निकल बंदे, वेबसाइट भी एकदम धांसू बना देंगे. देयर विल बी नो टेक्निकल एरर. बॉस मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है अपना, देखो स्कोर गूगल पे, राइट? बट द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी फेस इज ब्लॉग्स. ब्लॉग्स भी वी गिव, राइटर्स को दे देते हैं दैट आप लिख लो, ये रहे टॉपिक्स, लिख के भेज देना, हम पब्लिश कर देंगे. वो भी आपकी तरह चैट जीपीटी यूज़ करेंगे, राइट? चैट जीपीटी यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी से ब्लॉग आएगा. बट देन हु विल मेक श्योर दैट दे ब्रिंग ट्रैफिक? वी डोंट लुक आफ्टर दैट. ब्लॉग लिख लिया, ब्लॉग लिखना है, दैट इज द प्रोटोकॉल एंड वी विल डू इट. वी विल नॉट सी वेदर दोज ब्लॉग्स आर ड्राइविंग अस ट्रैफिक और एनी काइंड ऑफ लीड्स और नॉट. एंड दैट इज द रीजन वाई ब्लॉग्स नीड्स टू बी रिटन इन अ सर्टन वे. अगर आप चैट जीपीटी से भी लिखवा रहे हो, देन दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू मेक श्योर ऑफ. ये आपके सारे राइटर्स को यू हैव टू सेंड इट. इवन इफ यू गाइज आर राइटिंग एनी पर्टिकुलर कॉन्टेंट contributing to any of the publishing sites or anywhere, you have to remember that this formula needs to be incorporated. Now, how this formula is going to be incorporated? Whenever we create a blog, we have an outline, we have a structure, right? ये रहेगा हमारा heading, इसके अंदर हम ये sections cover करेंगे. How to create an app like using Flutter, right? अब उसमें we have steps. You know, you have to integrate वगैरह with Flutter and everything. So those steps. In those steps also, we need to cover this formula. So when you're writing introduction or any section of your blog, you need to answer first why the reader is going to read this. You have to write about that. Then you also have to write that how you are going to help them. And the third is, ऐसा तो बोला नहीं है, मैं बोलूँगी जाओ जाके कुएं में वो सोना मिल रहा है जाके ले लो and people will believe it. मैं वो परेश रावल तो हूँ नहीं, OMG जैसा कि वो उनको मक्खन खिला देंगे, राइट? सो यू नीड टू गिव प्रूफ. Either it comes from you guys or it comes from an expert outside. But there has to be a proof कि आप जो recommend कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो. And that is what even Google prefers that. So this formula also we have incorporated as an outline. और इसको as a validator checklist भी है कि अगर आपके पास कोई content आ रहा है तो उसको अगर आपको प्रूफ रीड करना है, वेदर इट अलाइंस विद गूगल्स रिक्वायरमेंट्स और नॉट, वेदर दिस विल एनी हाउ एनीवेयर एनी व्हेन दे विल ड्राइव ट्रैफिक और नॉट, दिस चेकलिस्ट विल हेल्प यू, राइट? यार बोल सकते हो कि मैं आ जाऊं बीच में, मैं क्या आप लोगों के लिए स्पेस कर देती हूँ, बट देन यू डोंट टेल मी दैट यू आर क्लिकिंग माई पिक्चर. सो भेज देना मेरे को अगर खींची है तो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोलैबोरेट, कोलैबोरेट एंड कोलैबोरेट. सो द पॉइंट इज, हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार वाइट लेबल नहीं करेंगे हम जीवन में, वी विल नॉट प्रोवाइड कोड टू एनीवन, बट दिस इज नॉट अबाउट वाइट लेबल, इट इज अबाउट सेलिंग आवर प्रोडक्ट. वी हैव टू कोलैबोरेट, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हो या कुछ भी हो. वी इवन डू इट. बैक लिंकिंग की कोई वेबसाइट के साथ हम कंटेंट के लिए वो करते हैं कोलैबोरेशन, एंड वी हैव टू डू इट. ये लोग, आप लोगों को क्या लगता है लोग अमेजोन पे जाके क्यों बेचते हैं? सेल्स के लिए, सिर्फ सेल्स के लिए? वहाँ पे कंपटीशन है, अमेजोन के पास बहुत बड़ा क्राउड है ऑलरेडी, और वो गूगल पे बहुत भयंकर रैंक करता है जिसको हम ओवरबीट नहीं कर पाएंगे. तो बेटर है ना कि वो जहाँ खड़ा है वहीं पे जाके हम अपनी प्रोडक्ट डाल देते हैं, तो उसका बेनिफिट शायद हमें मिल जाए. So that is how it is. We have to, because we cannot grow alone today. We have to be with people, we have to be with companies, we have to be with people who can help us in our business, in growing our product. Right? So, हमने क्या किया? ये सारी strategies में we decreased the amount of funds that we are going to utilize for marketing, but we added your time, your learning, your experience, your expertise as the time factor and added to it. So your marketing can be streamlined just with your time and the reduced
budget, right? हो सकता है you might hire one person, but then you need to be knowing what needs to be done, right? So yeah, couple of things जो गलतियाँ करके हम सीखते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी सीखते हैं. एंड when you are aligned with your nose, by the way, जब don'ts पता होते हैं ना तो do's बहुत easy हो जाते हैं. And that is the reason why we are going to talk about don'ts first. So don't focus on doing everything for yourself. You need to have people and you need to prioritize कि क्या आप करोगे और कौन टीम करेगी, right? Because खुद पे करने जाओगे, this is my own learning as well. You will fall miserably in terms of time management and everything. वो बहुत खराब feeling होता है यार. So don't focus and do everything together for yourself. Never go all in. चाहे कितना भी funding आ जाए, don't go all in because then वही दिक्कतें आ जाती है, lay off and all. So please don't do that. Don't play the quantity game. I mean unicorns, they come to us and tell us, Himani, we have 40 blogs. We published 40 blogs and we want to accommodate 10 more blogs to be published in a month. So can you help? And we are like, okay, we'll help. 10 is okay for us. But then when we realize they just keep on publishing without any review process. And then after 2 years, they feel those 300 articles are not ranking. अब वो रैंक नहीं करेंगे तो ट्रैफिक नहीं आएगा, मतलब ROI 0, ऑलमोस्ट नेगेटिव, बिकॉज 2 साल हो चुके हैं तो ROI तो नेगेटिव हो गया. तो प्लीज डोंट प्ले द गेम ऑफ क्वांटिटी इफ यू कैन नॉट मेंटेन देयर क्वालिटी. वैनिटी मेट्रिक्स, फॉलोअर्स, लाइक्स जितने भी हो, अगर रेलेवेंट नहीं है तो कोई काम के नहीं है. डोंट ओवर सेल, एज आई ऑलरेडी मैंशन. डोंट बी पुशी, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यू शुड ट्राई दिस, दिस विल बी रेलिवेंट फॉर योर कंपनी. नो, लेट देम लर्न इट ऑर्गेनिकली. डोंट फॉलो वॉट एवरी वन एल्स इज डूइंग. हाँ, वो अपने ने सुनी है, यू नो, वो पैरेलल पाथ वाला, यू नो, जहाँ पे कोई नहीं जाता है. बट देन समटाइम्स इट इज़ ईजियर टू फेल एंड देन लर्न अगेन. नेवर हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प एंड डोंट बी अफ्रेड टू स्टॉप व्हाट्स नॉट वर्किंग. अगर लिंक्डइन काम नहीं करेगा तो भी उसको देखना है कि कैसे हम उसका बजट स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, अपने एफर्ट बचा सकते हैं. अगर SEO वर्क नहीं कर रहा है तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा, राइट? देन द डूज, बिल्ड योर ऑडियंस बिफोर इवन यू स्टार्ट मार्केटिंग. जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, अगर गलत ऑडियंस हो गई ना, मार्केटिंग विल बी बैंड बजेगी सब. डू लेवरेज द स्टोरी ऑफ योर प्रोडक्ट, योर टीम. ओ माई गॉड, आपके आजू बाजू बहुत स्टोरीज है यार. यूटिलाइज दो स्टोरीज एंड क्रिएट कॉन्टेंट. इवन मनोज आज बहुत जोरदार यू नो वीडियो कॉन्टेंट के बारे में बताने वाले हैं, दैट हाउ यू कैन लेवरेज एंड क्रिएट योर ओन स्टोरीज. डू बिकम द कॉन्ट्रेरियन इन योर इंडस्ट्री. अ लॉट ऑफ पीपल कम टू अस एंड टेल अस, AI के टाइम में आप तो AI से कॉन्टेंट लिखते ही होंगे. एंड वी आर लाइक नो, हमारी स्टिल प्रोसेसेस मैनुअल है. जहाँ हमें AI को हायर करना है हम कर लेते हैं, बट ओनली ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस. सो दैट इज़ हाउ यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि आप अपने कॉम्पिटिशन से, इंडस्ट्री से कैसे अलग करोगे. एंड एक्टिवली एंगेज. जो स्पॉन्सर्स यहाँ पे डेफेस्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, दे आर नॉट हियर फॉर सेल्स, बट दे आर डूइंग इट so that they can give back to the society. They can give back to you guys. And here I am. Don't build just the product. Build a journey which can be inspiration for many. So be a thought leader, be a brand. Thank you.